नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज अभी हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट बातें और अभी रात के 11:15 हो चुके हैं। सो बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहेंगे। 4 मिनट से 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ये वीडियो रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करुन, जुड़े थाकुन। आज के खूब एक इम्पोर्टेंट विषय निये आमरा आलोचना करब। तो आमी प्रथमे पहले मैं बंगाली में कह लेती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जिस तरीके से व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो? क्यों प्लीज़ एसपी लिटरेचर को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प कर सकता है अभी भी, इन फ्यूचर में भी, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आज के আমরা এখানে ইউজিসি নেট জুন 2025 ব্রিটিশ লিটারেচার আমি একটা ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করব, যেহেতু পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে একটা হাউ মেনি আওয়ার্স ইউ নিড টু স্টাডি একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন সবাই জিজ্ঞেস করে, খুবই ভীষণ রকমভাবে জিজ্ঞেস করে এবং পেপার ওয়ানের কথাও এখানে একটু উল্লেখ করব। শুরু করা যাক। বিষয় হচ্ছে যে ব্রিটিশ লিটারেচারে যদি কেউ এক বছরের, মানে আমি একটা ইন জেনারেল বলছি, যদি কেউ এক বছরের জন্য তার টার্গেট আছে যে এক বছরের মধ্যে আমাকে এই এক্সামটা ক্র্যাক করতে হবে, আমি জিরো থেকে মানে একদম বেস থেকে শুরু করলাম, তাহলে তাকে আমি বলবো তোমার এই এক বছরে মিনিমাম তোমাকে 300 রাইটার্স, ব্রিটিশ লিটারেচারে 300 রাইটার্সকে কভার করতে হবে। আর এই 300 রাইটার্সকে কভার করতে গিয়ে সবাইকে যে তোমাকে একজন রাইটার বা একজন অথরকে, যেখানে হয়তো তোমাকে 2-3 ঘন্টা বা 2-3 দিনও লাগতে পারে কোনো কোনো অথর রাইটারকে, আবার কখনো কোনো রাইটার পোয়েট বা অথরকে মানে কখনো সেটা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টাতে উঠে যেতে পারে। ডিপেন্ড করছে ওনার লেখাগুলো থেকে কতটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইউজিসি নেট, সেট, গেট এই ধরনের এক্সামে আসে কি আসে না সেটার উপর। এবং 6 মান্থ, যদি 6 মাস থেকে আমাদের হাতে সময় কম, শুধু ব্রিটিশ লিটারেচার আর 300 রাইটার্স, শুধু ব্রিটিশ লিটারেচার অ্যান্ড 6 মান্থস, ইউ হ্যাভ 6 মান্থস অ্যান্ড 150 রাইটার্স, এরকমটা তো নয় বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে তোমাকে ব্রিটিশ লিটারেচারে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্স দিতেই হবে, তার সঙ্গে তোমাকে কি করতে হবে, আদার্স ইউনিট 10টা 20টা ইউনিট পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2 এবং এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পড়তে হবে এবং তোমাকে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং সেখান থেকে তোমাকে জিআরএফ নেট নিয়ে বের করে নিয়ে আসতে হবে। তো সেই জন্য পরিশ্রমটা সেইভাবে করতে হবে। তো 3 মাসের প্রিপারেশনও অনেকে নেয়, অনেকের হয়তো কোনো কারণে দেওয়া হয় না এক্সাম, সেই ক্ষেত্রে 3 মাসেরও প্রিপারেশন নেয়, সেক্ষেত্রেও বলবো তো একটা গতানুগতিক সময় ধরে পড়তে হবে নিজেকেই। তো আমি এটা একটা ইন জেনারেল বললাম, সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। যদি 1 বছরের প্রিপারেশন থাকে তো 300 রাইটারকে কমপ্লিট করতে হবে একটা বেসিক গাইডলাইন নিয়ে, এবং 6 মাসের যদি হয় তাহলে 150, আর 3 মাসের হলে 75। কারণ 3 মাসে কেউ যদি 300 রাইটারকে কভার করতে চায় তার তো সেই 300টা তো কভার হবেই না, অলরেডি আরও 10-20টা ইউনিট যে থাকছে, 19টা ইউনিটে হাতই দেওয়া হবে না, তাই তো। আর এই যে একটা প্রশ্ন, যেটা কোথাও না কোথাও প্রশ্নটার একটা ভিত্তি আছে, আবার আমি বলবো ভিত্তিহীনও, হাউ মেনি আওয়ার্স ইউ নিড টু স্টাডি ফর ক্র্যাকিং ইউজিসি নেট, সেট, গেট, জিআরএফ। তো এটা একটা প্রশ্নটাই একটা বলবো গোড়ায় গলত কীরকম, এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। কারোর 2 ঘন্টায় যেটা মাথায় আসে বা আয়ত্তে আসে, মুখস্থ হয় বা মনে থাকে, সেটা কারোর 10 ঘন্টা লাগতে পারে, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা। তো প্রত্যেকের ক্যাপাবিলিটি, আমি সবসময় বলে থাকি, প্রত্যেকে ইউনিক এবং প্রত্যেকের ক্যাপাবিলিটি আলাদা আলাদা, সেই হিসেবে নির্ভর করে। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য সেটা তোমার ক্ষেত্রে বা আপনাদের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে, কারণ আমি যেটা আমি পড়াশোনা করি সেটা আমি, আপনারা হয়তো অন্য জব করেন বা কাজ করেন, আপনারা যেটা আমি পড়াশোনা করেন সেটা আমি হয়তো আমি বাড়ির অন্য কাজ করি। তো এবং আমি আমার মতো করে একটা গাইডলাইন বলে দিলাম, এই সময় এই করো, কিন্তু তোমাকে করতে হবে যে তোমার কোনটা সুবিধে, তুমি কখন ফ্রি আছো, কখন তুমি মেন্টালি, ইমোশনালি, ফিজিক্যালি স্ট্রেস ফ্রি থাকছো এবং কতটা কার্যকরী হবে কোন সময় পড়লে, সেটা নিজের অ্যানালিসিস নিজেই আমরা সব থেকে বেশি ভালো করতে পারি। আর পেপার 1 এখানে কেন লিখেছি, পেপার 1 পেপার 2 যদি কেউ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স না দেয়, তার পক্ষে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে নেট ক্র্যাক তো দূরের কথা, মানে কোনো রকমভাবে সে বই পিএইচডি বা কোয়ালিফাইং স্কোরের মতো আসতে পারবে না, জিআরএফ নেটের কাছে ধারে কাছে আসতে তো পারবেই না। তার জন্য কি করতে হবে, দুটো পেপারকে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। হ্যাঁ, কোনোটা 60, কোনোটা 50 হতেই পারে, কোনোটা 80, কোনোটা 90 বা কোনোটা 70, কোনোটা 80 এরকম হতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা একটা 50, একটা একদম 90 এরকম প্রিপারেশন নেবো, বা একটা 20, একটা 80, এইভাবে কিন্তু হবে না। তো দুটো পেপারকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। এখানেই আমার এটাই গুরুত্বপূর্ণ বলার ছিল। আজকে ইউটিউবে থাম্বনেইল, টাইটেল এটাই থাকবে ইউজিসি নেট নিয়ে। আর পড়াশোনার জন্য পাশাপাশি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ পড়তে প্রিপারেশন নিতে নিতে আমাদের এই ধরনের প্রশ্নগুলো চলে আসে। তো এটাই হিন্দিতে বলে আমি এই ভিডিওটা কাজকে অফ করছি। প্লিজ ডু লাইক एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एसपी लिटरेचर। तो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि ब्रिटिश लिटरेचर के एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोगों के नेट पाने के लिए, जीआरएफ पाने के लिए एकदम भारी भरकम नंबर कैरी करते हैं। तो
मैंने इन जनरल एक बात लेकर आई, बहुत सारे क्वेश्चंस हम बच्चों लोगों के देखते हैं, उन लोग पूछते हैं कि अगर हमें ब्रिटिश लिटरेचर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कितने राइटर्स को कवर करनी चाहिए। तो इन जनरल मैंने खुद एनालिसिस करके लेकर आई हूँ। अगर आपके बेस अब जीरो से अब स्टार्ट करिए और आपको एक साल ये एग्जाम को देना है तो 300 राइटर्स को कवर करनी है आपको यूजीसी नीट के लिए, एंड वो आपको सेट एंड गेट में भी हेल्प कर देंगे, एक्स्ट्रा करके पढ़ने नहीं होंगे। और एक साल में 300 राइटर्स कैसे कवर होंगे? कोई राइटर या ऑथर को आप लोगों को 2 दिन 3 दिन भी देना पड़ सकता है, कभी कभी कोई एक राइटर ऑथर को आपको एक दिन में 2-4 घंटे में भी कवर हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहे थे कौन किसके टॉपिक से, किसके राइटिंग से कितने इंपॉर्टेंस और कितने रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हमें करनी होगी पीवाईक्यू एनालिसिस, लेकिन वो बाद में, पहले हमें सिलेबस भी कवर करनी है। और 6 मंथ्स के लिए मैंने इन जनरल बता दी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे ये नहीं, लेकिन इन जनरल आप लोगों को ये फॉलो करनी होगी। विदाउट ब्रिटिश लिटरेचर यू कांट क्रैक दिस एग्जामिनेशन और यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो 6 मंथ्स के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो 150 राइटर्स को कवर करो। 3 मंथ्स के लिए भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं तो 75 इन जनरल मैंने लिखी। ऐसे आपको टाइम डिवाइड करनी, क्योंकि सिर्फ तो ब्रिटिश लिटरेचर है नहीं, अदर्स 20 यूनिट्स है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दो मिलकर 20 यूनिट्स है। 20 में से ब्रिटिश चले गए तो आप लोगों का हाथ में 19 यूनिट्स है। अगर 19 यूनिट्स है, इसको टाइम देना होगा, इस एनालिसिस करना होगा। तो पेपर को क्रैक करने के लिए आप लोगों को ब्रिटिश को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि ये भारी भरकम मार्क्स कैरी करे, और अदर्स यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से, और एक क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू स्टडी। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कितने घंटे पढ़े। तो मैं तो कहती हूँ ये क्वेश्चन बेसलेस भी है, मतलब ये क्वेश्चन बेसलेस मतलब इसके कोई एकदम कोई मूल्य नहीं है, फिर मूल्य है भी, दोनों भी कह सकते हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। कैसे? मुझे लगता है ये क्वेश्चन एक बेस में ही एक गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कोई स्टूडेंट 1 घंटे में जितना पढ़ा पकड़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और दूसरे को 4 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे लग सकते हैं। हर एक की कैपेबिलिटी यूनिक होते हैं और अलग अलग होते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो आप लोगों के लिए खुद को एनालिसिस करनी होगी। मैं शायद जिस टाइम पर पढ़ाई करती हूँ उस टाइम पर आप जॉब करते हो, आप जिस टाइम पर पढ़ाई करते हो उस टाइम पर मैं घर पर कोई काम करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है ना, हर एक की सिचुएशंस अलग है, हर एक की लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, खुशियाँ सब कुछ है, लेकिन टाइम भी उस तरीके से डिवाइड करनी होगी हम लोगों को, है ना। तो ये जो राइटर आप कवर करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर को, ये आपको गेट, नेट, सेट, जेआरएफ एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। अगर आप चाहे एसएससी या फिर अदर्स जो होते हैं एग्जाम, इंग्लिश या फिर कोई अदर्स एग्जाम, ये इससे भी काम में लग जाएंगे, यही सारी चीज़ें। और पेपर 1 को मैंने क्यों लिखी? पेपर 1 को इसीलिए लिखी क्योंकि पेपर 1 और एंड पेपर 2, इफ़ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक जेआरएफ, तो आपको पेपर 1 एंड 2 दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। क्योंकि आप अगर 20-80 कर दोगे तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। और ये अभी जो कंपटीशन और अभी जो क्वेश्चंस की हालत चल रही है लास्ट 5 ईयर्स से, अगर आप एक को नज़रअंदाज कर दोगे तो वो भी आपको भी नज़रअंदाज कर देंगे, जिसकी वजह से आपको नेट या जेआरएफ नहीं होंगे। सो आपको दोनों पेपर को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। और पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस कवर करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी 11:30 बजने वाले हैं, मुझे ये वीडियो अपलोड भी करनी है। सॉरी फॉर लेट, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे कुछ काम होते हैं, आप लोगों को बताइए। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब করুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন। आप लोगों का कोई কমেন্ট है, कोई কোয়েশ্চেন है, তো যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন কমেন্ট থাকে প্লিজ জিজ্ঞেস করবে, আমি উত্তর অবশ্যই দেবো। সেটা প্রশ্ন হতে পারে, সাজেশন হতে পারে, এনিথিং। সো থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট।